Everyone, I hope you all are fit and fine at your home. I am Neetu Gupta, your science teacher from Gyandeep Senior Secondary Public School, Sikohabad. Students, this is your science book of grade 8th. In this book, there are 18 chapters. Your first chapter is क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि क्रॉप प्रोड्यूस करना और मैनेज करके आपके घर तक पहुंचाना। इस सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। स्टूडेंट्स, all of you know very well that all the living organisms need food for their growth, to do work, to repair the injured parts of our body and to stay healthy. फूड्स से हमें एनर्जी मिलती है वर्क करने के लिए, ग्रो करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, रिपेयर द इंजर्ड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड टू स्टे हेल्दी. द ग्रीन प्लांट्स कैन सिंथेसिस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis by using inorganic substance like carbon dioxide gas and water in the presence of sunlight energy. So, all of you know very well that the green plants are called autotrophs because they can synthesize their food by the process of photosynthesis. But we and animals get food from plant as well as other animals and other sources of food. In the other words, man has to grow plants and rear animals to meet his requirement of food. Many types of plants are grown on a large scale, produced by large scale are consumed in the large amount. Wheat and rice are two common examples. These are called food grains. In addition to food grains, pulses, pulses, fruits are also grown on a large scale because they are an important part of our body. The animals such as cow and buffalo are reared to obtain milk, whereas goat, fish and hen are reared to get meat and eggs. In this chapter, we will study the different practice of obtaining food from both plant as well as animals. Before we go further, we should know the meaning of the word crop. Students, what is crop? When the same kind of plants are grown in the field on a large scale to obtain food like cereals, wheat, rice, maize, pulses, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एक्सेट्रा, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप. यानी कि एक ही प्रकार के प्लांट्स को बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी फील्ड में ग्रो करना हम क्रॉप्स के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जांपल, अ क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट. जैसे कि आपको ये व्हीट क्रॉप्स दिख रही है, एक बहुत बड़ी मात्रा में व्हीट को उगाया जा रहा है, ग्रो किया जा रहा है. अ क्रॉप इज़ कॉल्ड फसल इन हिंदी. क्रॉप को हम हिंदी में फसल बोलते हैं. एंड क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सॉइल इन द फील्ड्स बाय फार्मर्स. Students, you know very well that different crops grow well in different season of the year. We know very well that two types of season, summer season and winter season. Based on the season in which they grow well, all the crops are categorized into two main groups, kharif crops and rabi crops. Firstly, we discuss about kharif crops, the crops which are sown in the rainy season, that is from June to July, and harvested in September month. It is called kharif crop. Example, paddy, maize, soyabean, groundnut and cotton. Paddy is rice still in the husk. Paddy
is grown only in the rainy season because it requires a lot of water. इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है. Paddy cannot be grown in the winter season because water available in winter is much less. On the other hand, if wheat is sown in the खरीफ season, अगर wheat को हम rainy season में grow करेंगे तो it will not grow well. This is because wheat plants cannot टॉलरेट टू मच वाटर ऑफ द रेनी सीजन. जिससे आपको ये दिख रहा है पैडी को ग्रो करते हुए किसान को. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्रॉप्स इज रबी क्रॉप्स. द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में उगाई जाती है, ग्रो की जाती है, उसे हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स. द सोइंग ऑफ रबी क्रॉप्स बिगिंस एट द बिगनिंग ऑफ विंटर. विंटर की शुरुआत में इसको ग्रो किया जाता है, यानी कि अक्टूबर टू नवंबर. एंड द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बाय द मार्च और अप्रैल. इसको हम मार्च में या अप्रैल में हार्वेस्टेड करते हैं. दिस वाज इन क्रॉप्स. फॉर एग्ज़ाम्पल वीट, ग्राम यानी कि चना, पीस और मस्टर्ड. अभी हमने आपको बताया था पिछली खरीफ क्रॉप्स में कि पैडी को ग्रो करने के लिए अ लॉट ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है, बट वीट कैन नॉट टॉलरेट टू मच वाटर ऑफ द रेनी सीजन. सो वीट आर ग्रोन इन द October to November and harvested by the March or April. Students, till about 10,000 BC, people were nomadic, यानी कि the people who have no permanent homes and continuously move from one place to another are called nomads. They were continuously moving करते थे in groups में from place to place in search of food and shelter. These nomadic people ate raw fruits, कच्चे फ्रूट्स खाते थे, and vegetables खाते थे found in nature and started hunting animals for food. They settled near the sources of water. बहुत बाद में वो उन्होंने सेटल होना शुरू किया such as rivers and cultivated land. उन्होंने लैंड को कल्टिवेट किया to produce wheat, paddy and other food crops. Then तब हम बात करते हैं तो जो उन्होंने फूड को ग्रो किया, तो व्हाट इज़ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज़ द कल्टिवेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर लिविंग थिंग्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स यूज टू सस्टेन ह्यूमन लाइफ. यानी कि एग्रीकल्चर केवल ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स नहीं है, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ जिससे कि उसे हमें फूड प्राप्त हो रहा है. यानी कि हम growing of plants in the fields and rearing the animals for obtaining food is called agriculture. The various tasks performed by a farmer to produce a good crop is called agricultural practice. जो भी हम टास्क अपनाते हैं, भी अलग अलग प्रकार के टास्क अपनाते हैं क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. सो स्टूडेंट्स, various stages of crop production. Basic practice of crop production are: first is preparation of soil, next is sowing मतलब बीजों को बोना, next is adding manure and fertilizers, third irrigation, fourth removal of weeds, harvesting, storage of food grains and rotation of crops. Now firstly we take preparation of soil. In preparation of soil, turn the soil and loosen it. सॉइल को प्रिपरेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सॉइल को टर्न करना पड़ता है, उसको लूज़ करना पड़ता है. लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स. अगर सॉइल लूज़ हो जाएगी तो उससे हमें क्या प्रॉफिट होगा? उसमें अर्थवर्म की ग्रोथ बढ़ेगी और माइक्रोब्स की ग्रोथ बढ़ेगी, जो कि सॉइल को और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं. नेक्स्ट इज़ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज़ कॉल्ड प्लोइंग. जब हम
टर्निंग करते हैं, सॉइल का उलट पलट करते हैं और लूजनिंग करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्लोइंग या टिलिंग। लेबलिंग द फील्ड फॉर इरिगेशन, प्लोइंग करने के बाद हम क्या करते हैं, सॉइल को लेबल करते हैं। लेबल करने से क्या होता है कि जो इरिगेशन से जो पानी जाता है वो लेबल एक साथ रूप में जाता है सभी सीड्स में, सभी प्लांट्स के अंदर। Now next is manuring is done to increase the fertility of the soil before seeds are sown into। मैन्योरिंग की जाती है जिससे कि सॉइल की जो फर्टिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सके सीड्स को बोने से पहले, सोन करने से पहले। Plowing of field is done by using an implement called plow। This one plow, हम इसको प्लॉ कर रहे हैं खेत को। प्लॉ आर मेड ऑफ वुड और आयरन एंड दे हैव एन आयरन टिप फॉर इजी पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल। पेनिट्रेशन मीन्स अंदर तक धंसकर, सॉइल को अंदर तक धंसा कर उसको लूज करना। द प्लो आर पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ बुलक, जो प्लो है उसको बुलक्स के द्वारा खींचते हैं और बाय अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। Plowing of a small field is done with the help of animals like bullocks. While large fields are plowed by using tractors, the loosening of soil by plowing is beneficial for soil and plants. There are many profits for the plants, जैसे कि like that the loose soil allows the plant roots to penetrate freely and deeper into the soil so that plants are held more firmly to the ground। अगर सॉइल हमारी लूज़ होगी तो प्लांट की रूट्स जो है पेनिट्रेट करेंगी, यानी कि फ्रीली अंदर तक धंस जाएंगी और वो प्लांट्स को अच्छी तरह से ग्राउंड में सीधा खड़ा रखेंगी। The next profit is the loose soil allows the root of plants to breathe easily। उसको आसानी से ब्रीदिंग कराएंगी। दिस इज़ बिकॉज लूज सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ एयर इन इट्स स्पेस। नेक्स्ट प्रॉफिट इज द लूज सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ वर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल who are friends of the farmers since they help in further turning or loosening the soil। Next, plowing also uproots। प्लोइंग से क्या होता है, अपरूट्स कर देते हैं एंड बरीज कर देते हैं द वीड्स को स्टैंडिंग इन द फील्ड एंड देयर बाय सफोकेट्स देम टू डेथ। स्टूडेंट्स, इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ही ड्राई होगी तो प्लोइंग करने से क्या होगा, इट ब्रेक्स इनटू लार्ज मड, वो ब्रेक हो जाएगी लार्ज मड में, मतलब यानी कि क्रम्स में। ड्यूरिंग प्लोइंग के दौरान क्या होगा, लार्ज बड़े बड़े टुकड़े बन जाएंगे मड्स के। द मड क्रम्स आर देन ब्रोकन डाउन। मड्स क्रम्स को हम बाद में ब्रोक डाउन करते हैं बाय यूजिंग द सॉइल प्लैंक कॉल्ड क्रम क्रशर। उसको हम बोलते हैं क्रम क्रशर के द्वारा हम बड़े बड़े मड क्रम्स को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लेबलिंग करने से क्या होता है, लेबलिंग ऑफ प्लोड सॉइल इज़ बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, जैसे कि लाइक दैट द लेबलिंग ऑफ प्लोड फील्ड प्रिवेंट्स द टॉप फर्टाइल सॉइल फ्रॉम बीइंग कैरीड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड और वॉश्ड बाय द रेन वाटर। द लेबलिंग ऑफ प्लोड फील्ड हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द फील्ड्स ड्यूरिंग irrigation। And manure is done to increase the fertility of the soil before seeds are sown into। यानी कि मैन्योरिंग मीन्स क्या होता है, एडिंग मैन्योर टू द सॉइल। हम सॉइल के अंदर मैन्योर को ऐड करते हैं। मैन्योर क्या है हमारा, एक प्रकार से उसको न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए हम बाहर से ऐड करते हैं। मैन्योर को हम घर पे कैसे बना सकते हैं, आप लोग जानते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा, वी कैन डंप फॉलन लीव्स इन द कंपोस्ट पिट सो दैट इट रॉट्स एंड चेंज टू मैन्योर। मैन्योर इज यूजफुल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ह्यूमस, मैन्योर आर ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमस, डार्क ब्राउन और ब्लैक सब्सटेंस प्रोड्यूस व्हेन लीव्स और रॉट। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में कई सारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट आपका है प्लॉ। फर्स्ट इज plow। Plow is a large agricultural implement
which is used for plowing. Plowing means plowing or tilling the soils in the field. The wooden plow consists of a of long log of wood which is called plow shaft. There is a handle at the one end of the plow shaft. Below the handle is a strong triangular iron strip is called plowshare. The other end of the plow shaft can be attached to a wooden beam which is fixed at right angles to the plow shaft. This beam is placed over the neck of two bullocks so as to pull the plow. When the plow is pulled by the bullocks, the farmers hold the handle of the plow and press down the handle, due to which the plowshare digs into the soil, loosen it and turns it, adding fertilizers to crop, removing the weeds, turning off soil made of, इन सभी चीज़ों में वो काम आता है, removing the weeds, turning off soils. Next is hoe. Hoe is an agricultural implement which is used for removing weeds. Hoe is an agricultural implement which is used for removing weeds and loosening and turning the soil. Hoe consists of a long rod of wood or iron. There is a handle at one end of hoe. A strong broad bent plate of iron is fixed below the handle and acts like a blade. Hoe is also pulled by animals such as a pair of bullocks. Next is cultivator. Cultivator is a tractor-driven agricultural implement which is used for loosening and turning the soil in the field quickly. A cultivator has many plowshares which can dig into considerable area of the soil at the same time. यानी कि एक ही समय में कई सारे एरिया को वो डिग कर सकता है, लूजन कर सकता है, टर्न कर सकता है. इसी कारण से मैनी फील्ड्स कैन बी प्लोड, कई सारा फील्ड्स एक बार में इन अ शॉर्ट टाइम्स बाय यूजिंग कल्टिवेटर. एक ही बार में कई सारा फील्ड्स को हम प्लोड कर सकते हैं. इन दिस वे द यूज़ ऑफ कल्टिवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. इस कल्टिवेटर यूज़ करने से फार्मर्स का जो लेबर है वो भी कम हो जाता है और टाइम की भी सेविंग होती है. सो प्लोइंग ऑफ लार्ज फील्ड इज डन बाय यूजिंग ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टिवेटर. ओके स्टूडेंट्स, इतना पार्ट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट पार्ट ऑफ बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. I think if you like it, then you subscribe my channel and like my channel and share it others friends.